evening to everyone. I hope you're doing good as well as I hope आप कोरोना वायरस की सारी गाइडलाइंस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं because guys the situation out there is very intense and I kindly request कि आप सारी गाइडलाइंस बहुत अच्छे से फॉलो करें as well as I want to thank all of you to give me such good response as well as love and support. Also, I want to say that the topic that I will be speaking on is communication skills, effective communication skills. So first question आपके mind में जो आना चाहिए वो ये है कि हमें क्यों ज़रूरत है communication skills की. We people are all mature, we people understand each other really well. So yes, it means childhood से लेके अभी तक हमारे communication skills बहुत अच्छे से develop हो गए हैं. But why do we need to improve it? What is the need of it? So yes, all of you who are been going to SSB and if you are coming back from the SSB without something in your hand, either you are getting screened out or conferenced out, it means कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है. And yes, all of you might have always written अपनी to-do list में कि we have to improve our communication skills. It's very common topic. एंड द थिंग इज दैट हम कैसे बात करते हैं, हम किस लिहाज से बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं एंड हमारी टोन क्या है, एज वेल एज द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड यू डीपली और नॉट. एंड मोर ओवर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्माइल है या आप फिजिट कर रहे हो, दुखी हो, everything will be reflected onto your face. That's very true. So how to make our communication skills effective? फर्स्ट चीज तो क्लियर हो गया कि इट इज वेरी मच डिवेलप्ड, हम अब मेच्योर हैं, इट इज वेरी मच डिवेलप्ड इन आवरसेल्व्स, बट हम उसको इम्प्रूव कैसे करें. सो आई विल बी टेकिंग यू थ्रू अ पीपीटी जिसमें मैंने आपको 5 नॉर्मल पॉइंट्स बताए हैं जो कि हम कॉमन लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं. दीज आर नॉट हाई लेवल पॉइंट्स, दीज आर वेरी लो लेवल पॉइंट्स जो कि हम रोज इम्प्लीमेंट करें. If we implement all these 5 points, it will bring very good change in your personality, and that is very required in every service selection board. So guys, I want you to come along and see that how we can change our communication skills. And moreover, I want कि आप सब लोग इसको 30 days के लिए practice कीजिए. For 5 to 10 minutes a day enough, बहुत है 5 to 10 minutes every day, and it will definitely bring a lot of change in your personality. So come along guys. Thank you. So guys, I will be talking about 5 points in which you can improve your communication skills. ये 5 points बहुत ही basic points हैं जो कि हम लोग normal persons can implement and repeat it on daily basis. So let's get started with the PPT. So the very first thing is that you should improve your communication skills. It will not only improve your confidence, but it will bring you growth. You will see yourself grow. So let's get started with it. So the first point जो आपको रखना है वो है balance. आपको हर चीज में balance रखना पड़ेगा. Not just for SSB, for every aspect of your life. Your professional life and your personal life have to be managed, have to be balanced by you, by the capacity of your mind. Very important. In communication skills, we have to think, we have to listen, we have to speak, and we have to act non-verbally also at times. इस सब का amalgamation, इन सब का collaboration एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल सेट बनाता है. सो इसको मैं थोड़ा डेप्थ में समझाना चाहूंगी आपको कि बैलेंस का मतलब क्या है. कि जब भी आप बात करें तो आप ना तो ज़्यादा डोमिनेंट दिखें और ना ही ज़्यादा सबमिसिव दिखें. यू हैव टू बी वेरी काम, कंपोज्ड, एंड यू हैव टू कन्वे योर पॉइंट इन सच अ मैनर कि ना तो आप डोमिनेंट दिखें और ना ही आप सबमिसिव दिखें. आप एक टीम लीडर की तरह दिखें. फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेंस कब शो होता है? व्हेन यू हैव लैक ऑफ नॉलेज. सबमिसिवनेस कब शो होती है? और इंट्रोवर्टनेस कब शो होती है? जब आप खुद से इतना एफर्ट नहीं करते, जब आप अपने आप को काफ़ी
लो समझते हैं, यू थिंक दैट दूसरे लोग आपसे ज्यादा अच्छे हैं, दे आर मच मोर बेटर देन यू. In SSB, we always, in fact, I always thought कि I think that this person is of much more greater capability than me. ये doubts हमारे दिमाग में अक्सर आ जाते हैं because of the fact कि SSB में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हर एक पार्ट्स ऑफ कंट्री से आते हैं, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई साउथ से, कोई वेस्ट से, कोई ईस्ट से. सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबके कम्युनिकेशन सेट स्किल सेट अलग हैं, बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है, एवरीथिंग डिफर्स. तो क्या होता है कि जनरली जो सबमिसिव लोग होते हैं वो अपने आप को लेस समझते हैं इन कैपेसिटी टू एनी पर्सन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट. सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. उससे आप अपने आप को नीचे और ला रहे हैं, अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं. सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ बिकॉज इट वोंट हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन. So the first point of balance is you don't need to be dominant and you don't need to be submissive. Communicable bano आराम से. All right. Be an ambivert person. What is an ambivert person? A person जो extrovert भी है और introvert भी है. For example, when you are up with your friends, आप लोग हमेशा फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे हो, बात कर रहे हो, you are having a good time. Then you can be an extrovert person. Introvertness आपको कब काम आएगी? To listen properly. As well as आपका माइंड बहुत काम रहेगा when you will act introvert. ठीक है. So आपको introvert भी रहना है, आपको extrovert भी रहना है. All right. So this is what ambivert person means. And yes, implement fine line combination of heart and mind. Very important guys, very very important. It's not always कि आपको हमेशा अपना दिमाग ही चलाना है. Use your heart also. But इसमें भी एक 50-50% का बैलेंस रहना चाहिए. बिकॉज अगर आप माइंड ज़्यादा यूज़ करोगे तो यू विल मिस ऑन टू योर इमोशनल फीलिंग्स. और अगर आप हार्ट ज़्यादा यूज़ करोगे इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है. सो यू हैव टू यूज़ योर हार्ट एज वेल एज योर माइंड. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि हर चीज़ को बैलेंस के विजन से देखो कि आप मैं इसको बैलेंस कैसे कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल GD चल रहा है SSB में. there's a fish market going on, all right. So उस टाइम पे बोलना would not be, would not be good for you, and it will not add any good point to your portfolio. So आप आराम से रहें, मस्त रहें, बिंदास. एंड जब कोई किसी और कैंडिडेट का सैचुरेशन पॉइंट आता है, मतलब उसकी स्पीच थोड़ी सी कम होने लगती है, फिर आप आराम से बोले कि yes ladies or men, I want to quote a point. Be very confident, be very bold. I want to quote a point. I agree to chest number this as well as I want to say this. तो boldness दिखाइए as well as confidence दिखाइए. So balance out both the things. ना ही ज़्यादा बोलो, ना ही कम बोलो. Very valid point you have to give. So coming on to the next part is respond, not react. हमेशा रिस्पॉन्ड करो, रिएक्शन मत दो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर, अगर आप किसी भी बात पे रिएक्ट करते हैं इट विल ब्रिंग यू डाउन, और आप किसी भी बात पे अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो इट विल ब्रिंग यू अप. रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में डिफरेंस क्या है कि रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल इफ सम पर्सन इज कमिंग और स्पीकिंग टू यू, आपको कोई बात पसंद आई और कोई नहीं पसंद आई, तो जो बात पसंद नहीं आई तो जनरली हमारा माइंड विल टेंड कि आप जल्दी से रिएक्ट करो, आप जल्दी से अपना जवाब दो, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट. दैट शुड नॉट हैपन. फर्स्टली समझो कि वो क्या कहना चाहता है. यूज योर माइंड, यूज योर काम माइंड कि हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड, हाउ यू कैन गिव अ बेटर रिस्पॉन्स टू द अदर पर्सन, कि उनकी बात भी रह जाए और मेरी बात भी रह जाए. एक बैलेंस क्रिएट करो. नेवर एवर रिएक्ट टू एनी आर्ग्यूमेंट, इट विल ब्रिंग यू डाउन. ऑलवेज रिस्पॉन्ड एंड दैट टू विद अ स्माइल. काम माइंड रखोगे बहुत अच्छा रहेगा फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ऑल राइट. एंड yes, response gives a permanent effect, reaction is a momentary effect. Good listeners, very important. I am not saying be a good person with hearing capability.
सुनना इम्पॉर्टेंट है, बट उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आगे से आपको क्या चीज़ बोली गई है. सो यू हैव टू बी अ वेरी वेरी गुड लिसनर. लिसनिंग कैपेसिटी आपकी हर एक टेस्ट में चेक होती है. लेट इट बी साइकोलॉजी, इंटरव्यू, एज वेल एज योर GTO टास्क. एसेसर्स क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर इट. उनकी क्या कमांड आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली अगर हम GTO टास्क को कंसिडर करें तो GTO टास्क में क्या होता है, हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और हम उसके बाद ज़्यादा बोल नहीं पाते. एंड अगर हम प्रेशर में हैं और इफ द GTO इज टेलिंग यू कि यू नो डू दिस और डू दैट, हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत प्रेशर में होते हैं, जनरली माइंड हमारा ब्लैंक होता है, तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन दे देते हैं. ऑल राइट, सो बी वेरी काम. उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं और उस चीज को इम्प्लीमेंट करो. दिस इज व्हाट दैट मेक्स यू अ ट्रू ट्रू लीडर. रिमेंबर दैट. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज. बिलीव मी गाइज, योर बॉडी लैंग्वेज सेज अबाउट योर पर्सनैलिटी. अगर आप थोड़ा सा फिजिट कर रहे हो, मतलब ऐसे थोड़ा ढीले से बैठे हो, it will show that you are a very, you know, very step back person, or you don't put that much effort into something else. So be confident about yourself, accept कि हाँ मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, and I like this and I like that. All right, अपने आप को accept करो and have a very good body language. Like अगले बंदे को पता चले कि अंदर से yes, this person has that spark. I want to take this person. I want this person to be an officer. I want this person to be a team leader. So it's just not कि आप ऐसे बिल्कुल सीधा करके आप इंटरव्यू दे डर के दे. You can use your hands a little bit, yes, and you can be very comfortable. Sir, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या कैसा लगता है? What do you think about it? So be very interactive, be very polite, calm, humble. So your body language is the most important point. So अपनी body language को आप प्रैक्टिस कीजिए रोज कि आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं. ऑल राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बी वेरी काम. ऐसा जरूरी नहीं है कि यू ऑलवेज हैव टू हैव अ वेरी अपराइट बॉडी स्पाइन. नॉट इम्पॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट हाँ, ऐसा लेजी भी मत शो करना कि द अदर पर्सन डोंट टेक इंटरेस्ट इन योर सेल्फ. So yes, you have to have very, very good body language. Your body language will definitely change your confidence and it will show high self-esteem. So you have to believe in yourself. बहुत important है. कुछ भी start करोगे, पहले अपने आप को पूछो कि मैं ये चीज़ कर क्यों रहा हूँ और क्यों कर रही हूँ. And you are very sure about it. आपकी vision बहुत clear है. Work hard on it. उस प्रोसेस को अच्छी तरह से जानो कि वो प्रोसेस क्या मांगता है आपसे, एंड वर्क रियली हार्ड. उसके बाद अचीव योर गोल्स नॉट जस्ट दुखी होके. स्माइल वर्ल्ड इज अ लवली प्लेस. सो प्लीज आप ये चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट विल श्योरली हेल्प यू गाइज वेरी वेरी इफेक्टिव. द नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट. जनरली हम लोग आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल इंटरव्यूइंग ऑफिसर है एंड द कैंडिडेट इज अ फीमेल, जनरली ऑपोजिट सेक्सेस को लेके आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते. दिस इज अ वेरी ऑफिशियल स्टडी ऑल्सो. स्टडीज कहती हैं कि आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हो दूसरे सेक्स के थ्रू. ऑल राइट, सो क्या है, आपको क्या करना है कि आप अगर you can do one thing. I always believe if you're not able to make eye contact, you can always look here. Look in the forehead of that person. Don't look into the eyes. I do that. मैं अभी भी शायद eye contact नहीं बना पाऊंगी अच्छा, but confidence show करने के लिए हमेशा I look into the forehead of the person, because फिर the other person thinks that yes, she is confident, she is having a proper eye contact with me, so yes, I will be considering this girl ahead. All right, so अगर आंखों से आंखें नहीं मिला पाते हो, please look here, it will help you. And repeat this thing with your friends and your family. All right, so the next and the most important point is smile. Smile, yes. जब आप थोड़ा ऐसे
अच्छा बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, यू आर स्माइलिंग, यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है. So it's a very good communication skill that you should be having. It will improve your confidence as well as smile is the best accessory you can have. कुछ नहीं भी आता है, कुछ नहीं आता है, say, sorry sir, I will definitely get back to you in the conference. Have a wonderful smile on your face, humble, as well as नहीं आता तो नहीं आता ना, क्यों अपने आप को इतना प्रेशराइज कर रहे हो. सो आई होप आपको ये सारे 5 पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है. बिलीव मी, वेन एवर यू गेट इन टू एनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, बेसिकली वो 2 महीने या 3 महीने का क्रैश कोर्स रहता है, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि आप ये कर सकते हो और क्या क्या प्रोसीजर है. बट रेपिटेशन इज द की गाइज. अगर आप इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते हो, लाइक you don't react, you respond, you have a smile on your face, your body language is totally upright, and the other 2 points also, अगर आप इसको बार बार रिपीट करते हो तो believe me, you don't need any personality development course. Repetition is the key. I'll repeat, you have to do it daily. मान लीजिए आप लेक्चरेट दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपका लेक्चरेट अच्छा नहीं हो रहा, so it has to be on a daily basis. जब आई स्टार्टेड माई SSB जर्नी, आई रिमेंबर दैट मेरा पहला लेक्चरेट वॉज फॉर 30 seconds एंड उसके बाद मैं एकदम से रुक गई थी. आई वॉज टोटली ब्लैंक और कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ. तो ऑब्वियसली उस टाइम कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था. बट एज माई विल पावर, आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे ये करना ही करना है. तो मैंने फिर से अपने आप को उठाया एंड आई यूज टू गिव ऑलमोस्ट, आई स्टार्टेड विद गिविंग 1 lecturate a day, then 2, एंड लास्ट में मैं रोज 5 लेक्चरेट्स देती थी. आई यूज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, आई यूज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ग्रुप्स, माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई पेरेंट्स, सो दैट आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़े. एज वेल एज यू ऑल नो दैट लॉकडाउन में यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आप बाहर नहीं जा सकते. सो उस रीजन से आप क्या कर सकते हैं, 1 बेसिक फंडा दैट यू कैन अप्लाई इज, आप अपने किसी भी फ्रेंड को वीडियो कॉल करो एंड गप्पे तो आप मारोगे ही, ऑब्वियस सी बात है, बट उसको ये बोलिए कि 3 मिनट में से ये इस टॉपिक पे आई स्पीक, मैं बोलूंगा या बोलूंगी, आप सुने इसको, आप मुझे बताएं कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ. बिकॉज योर फ्रेंड इज योर बेस्ट क्रिटिक. आपको हमेशा एक फ्रेंड अच्छी तरह से क्रिटिसाइज जो करे वो आपका अच्छा फ्रेंड है. सो इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव इट एंड येस, इसको बार बार रिपीट करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली एंड थोड़ा सा एग्रेशन आ रहा है, सो स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग कि हाँ जी बताओ इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है. थोड़ा काम हो जाओ, यूज योर माइंड इन बिटवीन, बैलेंस आउट कि आप क्या बोल रहे हो, सोच समझ के स्पीक वर्ड्स आउट ऑफ योर माउथ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज these are the few qualities that are being assessed by every SSB board. एंड हम इस चीज पे लैक करते हैं बिकॉज हम इसको रिपीट नहीं करते. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई इट फॉर द नेक्स्ट 30 days. उसके बाद आई विल बी हैविंग अ लाइव क्लास, आई विल बी कंडक्टिंग अ लाइव क्लास एंड मैं आपको पूछूंगी कि आप में क्या चेंज आया. येस, it will give you a lot of confidence, it will bring a change in yourself and it will uplift your personality. Believe me, just go and try it. अगर नहीं अच्छा लगता तब भी आप मुझे बताना, so that I can give you much more points how you can do it. So in this way, I want to say that improve your personality, improve your confidence, have great communication skills. And also I want to say that every day I am taking daily life classes of current affairs, vocabulary, as well as currency and capital. Also guys, I want to say that आपको जितने भी PDFs हैं, आपको लाइव क्लासेस के PDFs मिल जाएंगे डिफेंस मेनिया ऐप पे. आपको कोड यूज करना है DMCA. एनी इम्प्रूवमेंट्स इन द लाइव क्लासेस जो मैं ले रही हूँ, आप प्लीज सुबह आएं और आप मुझे बताएं कि हाउ आई कैन इम्प्रूव, सो दैट आपका गोल अचीवमेंट बहुत ही अच्छा हो. एज वेल एज आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू वंस अगेन. एंड येस, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एंड वील बी हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर. पढ़ाई करेंगे, ऊपर से डिस्कशंस करेंगे, स्पॉन्टेनियस लाइव चैट रहेगी. सो कम अलोंग गाइस. थैंक यू सो मच.